Today we are joined with Chairman C.A. Hansraj Chugh sir. He's the person who has actually steered this program of mentorship and orientation. We are joined with Mrs. Sonal Goyal, who is an IS officer. She belongs to 2008 batch, All India rank 13, and she belongs to Tripura cadre. She has administrative experience of working in two states of Tripura and Haryana, and she is presently posted as a resident commissioner, Tripura Bhavan, New Delhi. Apart from various accolades, she has been selected as a top 25 women transforming by Niti Aayog, United Nations, and my government in September 2016. Sir, we are very blessed and we are also fortunate to have Sonal ma'am with us, and it will be a source of great inspiration for all our participants. And to add, sir, yesterday we had a faculty, R.S. Agarwal sir, who had referred about Sonal ma'am, and it is very fortunate and lucky that we are having her today with us as faculty of the orientation program, sir. I hand over to Chairman, sir, to give his opening remarks, sir. Yeah, Thank you, sir. thank you, Anita ji. Thank you very much to this great program. The purpose and the objective of the program we all understand with to guide our young chartered accountants or the students. Those has brought something good in their mind to be a civil servant in the system of the country and bring best in the government system, whether it is the governing system or otherwise wherever the value addition required. It is well said, the qualified chartered accountants or the any qualification you talk about, technical or the commercial or the economic, they are having a better minds, better brain, so that ultimately we realize the game of the new India. And I really appreciate the Sonal Goel madam. She has agreed to address our members, our students, those who have been really been aspiring to be a civil servant in the system of the country. And the credit to the Sonal Goel madam, we all understand with already elaborated by Anita madam. She has so good credentials. All India ranked 13 her time, and naturally 2008 batch, qualified company secretary, LLB, as well as the MA profile in the public policy, and not limited to it, well felicitated by the district magistrate and the collector. And naturally, she has been selected as a top 25 women transforming India by Niti Aayog, United Nations, and the my government also. All these two are credit, best of the brain, best of the guiding, best of the mentors. So many good things about Sonal madam I can only share with you. I have the opportunity to met her once in one of the program of the ICI only. Then I thought of let her be there in the mentorship programs also. So she agreed to this our request, and today she is there with each one of us. And I personally believe so. Each and every participant will be benefited with the deliberation of our Sonal Goel as a guest faculty and the many others, those who have been there will be there today and tomorrow also. And whatsoever the yesterday, really I appreciate everyone has applauded. At the end of the day, I have been came to know that it was a wonderful day, so many good initiative, whether it is technical knowledge or the understanding of the moving towards the greater heights. So with these words, I welcome each and every participants. I welcome our guest faculty Sonalji, and hope this journey of 3 days will be a great strength and a great aspiration to each one of you. Thank you all. Thank you very much. Over to Anita again. Anita ji. Thank you very much, sir. I will request Sonal Goel ma'am, IS officer, to kindly address our participants and motivate us and share her living in life experiences of her journey for this civil servant, sir. Thank you very much, ma'am. Over to you, ma'am. A very good morning to all of you, respected CA Hansraj Chokji, Anita ji, and all the students, the CA fraternity students who are attending this program. I, along with my colleagues, would like to extend my warm welcome to all of you. Today, we are joined with Sonal Goel, who is an IS officer. She belongs to 2008 batch, All India rank 13, and she belongs to Tripura cadre. She has administrative experience of working in two states of Tripura and Haryana, and my government in September 2016.
Hello. Hello. attend Ma'am, can you please check your internet connectivity? the Sonal CA ma'am. Institute, NIRC. My connect. Vikas, we are able to hear Vikas. Vikas? Is Absolutely there okay. any problem? Is it okay? Student, Ma'am, there is an internet connectivity issue. Vikas, we are able to hear you. No. Hello. Ma'am, am I Vikas, we are audible able to to you? hear you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, Okay, please continue. We are able to hear you. You are able to hear, ma'am? Sonal ma'am, you can please continue. Now it's okay. okay, right. So thank you for inviting me in this civil services orientation and mentorship program. It is actually very heartening to see now the uh, young students who are pursuing CA, CS, cost accountancy, even MBAs, that they are getting inclined towards coming into civil services. And if we see the that is increasing every year. So that is really very heartening to see. And my apologies to the students. Earlier, they had invited me to come and take the session in person, physical session, but then due to some limitation, because it's a working day for me, so I could not actually travel. So my apologies for that. So, but in future, if there is any such opportunity, I would definitely try and be there with the students in the physical mode. So, students, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस तरीके से करूंगी क्योंकि आज हम सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आई एम श्योर दैट यू आर ऑल pursuing your chartered accountancy course, so you are already aware of, and if you are attending this session, that means you have the basic knowledge about civil services. What are the stages, what is the syllabus, then how many attempts are there. But still, to begin with, I think few things are very important as far as the civil services preparation is concerned. The first and very important point is that कि आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए that why is it that you want to join civil services, what is your purpose and aim of coming into civil services. आप अगर अभी CA का कोर्स कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में आप शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं, एंड देन ये जो आपका रीजन है, ये जो रीजन है, जो प्रॉन्स हैं, लाइक जो सिविल सर्विसेज से जुड़ा है कि एक ही अपॉर्चुनिटी देता है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग फॉर द सोसाइटी, कनेक्टिंग टू द masses, and at a very young age, because if you are qualifying say in your early 20s or even mid or late 20s, so in the initial 4-5 years only, you will get the opportunity of getting posted in field, and in field in your various profiles as SDM, as ADC, as head of any department, as the director, then as deputy commissioner or DM and collector. You will have many opportunities in which you will be directly at the helm of the affairs, and you will be able to affect the lives of the people through your action and through your decision making. So this is very important, and then you are working at the grassroots level. The opportunity it gives for bringing change. I would not say that every officer is able to bring a radical change. Even I have not been able to do that. But yes, of course, जो एक जॉब डाइवर्सिटी है, जो एक वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आज आप फील्ड में हैं, कल आप किसी डिपार्टमेंट को हेड करोगे, एंड इवन विद इन डिपार्टमेंट यू कैन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम
look after the rural development department. At some other point of time, you can be in the urban development department. You can be in the Ministry of Culture, Tourism, Sports. So ये सब जो चीजें हैं, यही इस सर्विस का ब्यूटी है. एंड ऑफ कोर्स एक जो इससे that is I think unparalleled. And इसके साथ में ही, but there are some, I would say, you know, every job has its own side effects. So it is not actually कि civil services में सब कुछ अच्छा ही होता है. Even I generally say to the students कि civil services में selection is comparatively easy, but working in diverse kind of situations, handling diverse profiles, handling law and order situation, field pressure, और एक जो एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें सिविल सर्वेंट्स को काम करना पड़ता है, which is like, you know, pressure from your media, judiciary, civil society organizations. So that dynamic paraphernalia always tries to govern the way civil servants are delivering. Then, of course, you cannot deny that there are political interventions in the work directly associated with the public at large. And एक बहुत important इसमें जो एक aspect है कि you generally do not decide your transfer and posting. You generally do not decide your posting. So ultimately, it is the family which also is affected to an extent, because frequent transfers होते हैं civil services में. तो ऐसा भी होता है कि कई बार कि आप सोचते हो कि ये initiative लेके आना है, but then you are somehow not able to do, and you are transferred meanwhile due to some reason. So the tenures are quite unstable, and not to discourage you have a decision. So जो मैंने आपको बात जो starting में बोली कि why is it that you want to join civil services? What is your reason of thinking about or starting preparation for civil services? That should be clear. आपको ये लगता है कि आपको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, कुछ हटके करना है, and is which can enable you to do that. So definitely नहीं होगी. So if I talk about मेरा introduction बहुत elaborately अनीता जी ने बोला, and जी ने भी बहुत ग्रेट. तो मेरा जर्नी जो रहा वैसे सिविल सर्विसेज में ऐसे हुआ कि आई वाज आल्सो लाइक I was in third year and I was also doing. I read about civil services in some of the magazines. So I'm talking way back, almost 20 years back, 2003 की बात है ये. So then when I discussed this with my parents, especially my father, so there were a lot of apprehensions which came into the mind of my parents, especially my father, that selection is never short or itna tough competition hai. Civil services is still one of the toughest examination in India. And when we are talking about being tough, so we cannot deny कि इसमें जो selection है that is in only in few hundreds, है ना, 1000 के आसपास में सीट्स रहती हैं. तो द एंड अराउंड 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं. सो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन. सो ऑल दीज एप्रीहेंशंस केम इनटू द माइंड्स ऑफ माय पेरेंट्स कि हाउ विल यू मतलब तैयारी करना, फिर सिलेक्शन होना, सिलेक्शन के बाद विच सर्विस यू विल गेट, आफ्टर सर्विस विच कार्डर यू विल गेट, after cadre where will you be posted, and then how will you balance your professional and family life. And also one very important question which was coming up is that do I really want to change my profession. I mean क्योंकि जो मेरा
प्रोफेशनल करियर उस टाइम तक सोचा था वो यही था कि एज CS मैं कर रही थी, तो आई वुड हैव एक्चुअली thought I had actually thought that I would be in corporate sector या अपना बाद में जाके अपना कोई practice establish करूँगी. तो all these things were kept on discussion. Discussion was there for almost around 6 to 8 months. But then when my father जब फिर मैंने उनको बार बार बोला कि I should appear at least once, then my father suggested, okay, if you want to do, you should have a plan B in your life. So by plan B, he said कि if you will be investing around 2 to 3 years in your civil services preparation, so ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो टाइम आप उसमें लगा रहे हैं और अगर सिलेक्शन नहीं होता है, then what is it that you will do? So what should be your plan B? So this question is relevant for all of you, all the students who are attending this mentorship program orientation session today, that if you are starting civil services preparation and till this time you had been doing suppose CA course आप कर रहे हो, तो आपका plan B क्या है? So then I took my father's advice. I completed my graduation and in 2004 I completed my CS. CS मेरा जून 2004 में complete हुआ. उसके बाद में मैंने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, लेकिन सेम ईयर में आई स्टार्टेड माई LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. DU से मैंने लॉ में एडमिशन लिया and in the same year I also started my part time job as company secretary because मुझे ऐसा लगा कि I should be having some professional experience and I should also earn for myself. So from 2004 to 2007 these three things were moving parallel in my life. My focus was civil services preparation, of course, but I was also doing law, which was a regular course, and there were classes which were being held physically at Delhi University Faculty of Law campus, and I was also doing my part-time job. So things were very difficult. Time management was always an issue, but then I think it is the matter of our prioritization. It is the matter of our own focus and self-discipline, which helps you achieve what you want to do in your life. So फिर जब ये मैंने तैयारी जब मैं कर रही थी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2006 में, एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई रोट प्रीलिम्स, आई रोट मेंस, बट आई डिड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल. सो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी मच डिजेक्टेड, डिमोटिवेटेड कि क्या होगा, कैसे होगा, नाउ व्हाट डू आई डू. सो देन आई gave a commitment to my own self कि now whatever would be my second attempt I will give my 100% so that in future I should not have any repentance that I did not give my best. तो उसको जब दोबारा से 2007 में जब एग्जाम दिया तो I also knew my weaknesses. So मेरे मेंस में अगर मार्क्स मेरे कम रहे, GS में मेरे जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम थे which I needed to improvise. So I also knew my weak areas that where I need to improvise. So it actually helped me. And then in the next attempt in 2007, I wrote my examination and by God's grace, I qualified the civil services exam and May 2008 में result आया था and I got All India rank 13. And after that, I joined my training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in September 2008, and in December 2008 our cadres were allocated and I was allotted Manipur Tripura cadre. So at that time MT Manipur Tripura cadre was a joint cadre, now it is separate. So उसके बाद में I was allocated to Tripura. So I joined Tripura in June 2009. So from 2009 to 2016, almost 7 years plus, I worked in Tripura. And after that, I worked in Government of Haryana. I came on inter-cadre deputation. I worked for 4 years with Government of Haryana, and then 2020 May I joined back Tripura cadre, and now I am presently posted as Resident Commissioner in Tripura House. So it has been almost more than 14 years of my experience in field, and I have seen the remotest parts of the country. So where I was SDM,
I can remember way back in 2010. So I was SDM Ambassa. Ambassa was a predominantly tribal dominated subdivision. So there were some areas still where you had to walk on foot to reach to the people. So all those challenges were there, and it was due to our team support, due to maybe that passion and commitment to deliver, to do good for the people. I think I could carry on, and by far, I think I have gained lot of experience. But yes, lot many things I wanted to do, which maybe I have not been able to do. But yes, that sense of satisfaction and contentment is there. So that was briefly my journey. Now, friends, coming back to the preparation. Now I will, क्योंकि ये orientation session है, तो I will not be able to, talk very much in detail about each stage, but definitely I would like to mention some points on prelims, mains, and interview, the strategy which can be adopted by all of you. So friends, जैसा कि आप सब लोग अब जो स्टेज में हैं कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, एंड सम ऑफ यू मे बी इवन undertaking a job, some of you may be working, some of you may be even having some other engagements or commitment. So now the thing which is very important for you is कि अगर आपको civil services का एग्जाम देना है, तो how many hours per day are you able to devote to civil services preparation? This is very important to have in your mind कि आप कितना टाइम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ऑन अ डेली बेसिस दे सकते हो, और आपको कब एग्जाम देना है. सो विच अटेम्प्ट यू वांट टू अपीयर. सो फ्रैंकली नाउ वी आर इन मिड ऑफ द अक्टूबर. अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, 23 की बात करें, तो 23 की बात करें तो लगभग टेंटेटिवली अराउंड जून प्रीलिम्स शेड्यूल होगा. तो जून में अगर आपको प्रीलिम्स देना है, तो आई थिंक अभी अगर हम करते हैं तो ये थोड़ा सा लेट हो गया. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि आई आइडियली सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स की जिस साल में आपको प्रीलिम्स देना है, उससे कम से कम एक साल पहले, एटलीस्ट 1 year प्रायर टू द योर अपीयरिंग इन प्रीलिम्स, यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन. तो उसको ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा सा अब टाइम आपके पास कम है, लेकिन अगर फिर भी आप अगर अगले साल प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो यू नीड टू हैव अ मिक्स स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको पहले थोड़ा सा ओवरऑल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, मेंस का थोड़ा ओरिएंटेशन अपना रखना पड़ेगा, एंड देन जब प्रीलिम्स का टाइम होगा तो उससे लगभग 2 महीने पहले यू विल हैव टू entirely focus on your prelims preparation. So that can be the strategy from now, so from October, November till June. But if suppose you are appearing for 24 attempt, 2024 में जो attempt है, तो you have sufficient time with you, but इस time को effectively utilize करना है. तो जनरली आइडियल क्या रहता है कि अगर हम बात करें कि एक साल के बाद में आपको अगर एग्जाम देना है, सो आई जनरली टेक दैट ग्राफ लाइक दिस, कि जो इनिशियल हमारे 4 से 5 महीने हैं, उसमें आपको अपना ओवरऑल फाउंडेशन लेंगे, आपको ओवरऑल जो सिविल सर्विसेज के बारे में जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसको एक साथ में पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि सम टॉपिक्स आर सिमिलर एंड सम टॉपिक्स आर ओवरलैपिंग, लेकिन कुछ टॉपिक्स अलग भी हैं. तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक बार सारे सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट एक बार में हम उसको पढ़ लें 5 से 6 महीने लगा के. सो देयर शुड बी दिस initial few months should be devoted to your combined study of pre and mains. Then after that it can be only mains focus 3 to 4 months. 3 से 4 महीने सिर्फ आप मेंस के ऊपर तैयारी करो. और मेंस के ऊपर तैयारी अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उसको तब उसके लिए छोड़ोगे कि जब प्रीलिम्स आपका दे दोगे उसके बाद जो गैप मिलेगा उसमें कवर करोगे, तो उसमें फ्रेंड्स पूरा कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेंस के लिए टाइम हमेशा कम रहता है. इट इज हार्डली 2 to 3 months गैप विच इज देयर इन प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड उसमें क्या होता है कि जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता है तब तक भी यू आर नॉट श्योर. ऑफकोर्स आपको, क्योंकि इट्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रीलिम्स इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मार्केट में आई मीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू
हमको ये पता लग जाता है कि कितना कट ऑफ आएगा एंड व्हाट इज गोइंग टू बी आवर स्कोर. यू tentatively you get an idea. But still what I am trying to say is कि अगर आप मेंस की तैयारी अभी करते हो, पहले कुछ करते हो, तो you will have an advantage in the sense that there would be some structure of your answer writing. मतलब कि आपका जो क्योंकि मेंस में इम्पोर्टेंट क्या है, मेंस में इम्पोर्टेंट है कि हमको जो आता है, whatever we are aware of, whatever we know, that should be reproduced effectively in your answers. That comprehension and then reproducing it is very important. तो इसके लिए ये जो टाइम है, इसके लिए आप इसको यूज कीजिए अपने नोट्स बनाने में. इफ पॉसिबल यू मेक योर नोट्स, एंड इफ नोट्स आप अभी बना लेते हैं तो वो नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सब्जेक्ट को लिखना है. व्हाट आई मीन टू से इज कि once you are reading anything, any topic, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपको अगर कोई क्वेश्चन उस पर 10 नंबर का पूछते हैं या 5 नंबर का पूछते हैं, तो व्हाट इज इट दैट यू शुड बी राइटिंग इन योर आंसर. वो एक आपका बेसिक आपकी ड्राफ्ट से रेडी होने चाहिए, राइट. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन ऑफ कोर्स जब आपका प्रीलिम्स जब आप दे रहे होंगे, उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले आपको जो है सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है. प्रीलिम्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, तो उसमें जो आंसर राइटिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. बट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो पढ़ रहे हो वो याद रहे. प्रीलिम्स में एक एडवांटेज ये भी है कि समटाइम्स यू आर एबल टू क्रैक क्वेश्चंस थ्रू एलिमिनेशन मेथड. कि फॉर एग्जांपल अगर उसका आपको श्योर शॉट नहीं भी आ रहा है जवाब, तो उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कि ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो उसके दैट आल्सो एक्चुअली हेल्प्स यू. सो बेसिकली थिंग्स शुड बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड so that you are able to attempt the question. और of course नेगेटिव मार्किंग है तो you should not मतलब unnecessarily रिस्क नहीं लेना है. बट अगर कुछ भी थोड़ा लगता है तो then we should definitely attempt. So this was friends the 12 months strategy जो मैंने टाइमलाइन को ब्रेक करके आपको बताया. बट एक सजेशन मेरा यही है कि बिफोर यू स्टार्ट यू शुड एक्चुअली गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी. और यूपीएससी की वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन है जिसमें वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा, आप डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, एज, और उसमें बहुत जो भी है, तो आपको ये पता लगेगा कि आप कितनी एज तक के एग्जाम दे सकते हो, आपके पास कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं. सो दिस ऑल्सो वुड एक्चुअली हेल्प यू इन मेकिंग अ प्लान कि आपको कब देना है, कितने साल इसमें इन्वेस्ट करने हैं. These things also would be clear to you. Now, coming to stage-wise preparation. So prelims क्या है? Prelims is, as we all know, it is a multiple choice objective test, CSAT जिसको बोलते हैं. And इसमें दोनों ही subjects के 200 marks हैं. Both subjects are of 200 marks each. And जो paper 1 है, that is general studies, and the paper 2 is aptitude test. So the aptitude test is basically about your comprehension, logical reasoning, mental ability and basic numeracy उसमें आता है. And then जो general studies है उसमें general studies में there are some topics which are mentioned. Besides that, newspaper reading, having update on the current affairs, all these are very important as far as the prelims examination is concerned. And if we talk about mains is entirely subjective. तो फ्रेंड्स हमारा जो यूपीएससी का पूरा प्रोसेस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो मेंस है. मेंस इसलिए है कि प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, प्रीलिम्स के मार्क्स आगे कहीं नहीं जाते हैं, प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग. और जो रिटन मेंस के मार्क्स हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, दीज मार्क्स इन टोटलिटी डिसाइड योर सिलेक्शन, डिसाइड योर रैंक, एंड देन विच सर्विस यू आर एलोकेटेड टू. तो इसमें हमारे 7 पेपर होते हैं जिसके मार्क्स हैं, और 2 पेपर ऐसे होते हैं जिसके हमें देना होता है, बट दे आर ओनली क्वालिफाइंग, राइट. सो देर आर इन टोटलिटी देर आर 9 पेपर्स, बट द मार्क्स आर टोटल्ड फॉर 7 पेपर्स, एंड ईच पेपर इज ऑफ 250, आई थिंक 250 into 7, तो अराउंड 1750 का आपका एंटायर जो है ये स्कोरिंग रहता है, टोटल मार्क्स रहते हैं.
And when we talk about papers, so paper 1 is essay, paper 2 is your history, heritage and geography, paper 3 है governance and polity, constitution, and paper 4 है technology and economic development, paper 5 है ethics, integrity, aptitude, और पेपर 6 और 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और पेपर 8 और 9 एक इंग्लिश का होता है और एक एनी वर्नाकुलर लैंग्वेज विच यू चूज. तो मेरे टाइम में फ्रेंड्स जब मैंने एग्जाम दिया था तो इवन प्रीलिम्स हैड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड मेंस में देयर वर 2 ऑप्शनल्स. सो आई हैड टेकन कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कॉमर्स इसलिए क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिया कि मुझे ऐसे लगा कि इट विल आल्सो हेल्प मी इन माय करियर एज अ सिविल सर्वेंट. मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था उन सारी टॉपिक्स का. सो आई चोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इट विल हेल्प मी in maybe my official working at a later stage if I am selected. And of course उसमें जो topics हैं they also help in your general studies. So then coming back to the structure of mains, so there are in totality nine subjects, और इसमें essay is very important, essay writing. तो पहले हमारे टाइम में एक ही ऐसे लिखना होता था. नाउ दे आर गिविंग टू एसेज टू बी रिटन. सो नाउ 2 essays आर टू बी रिटन, एंड जो ये 2 ऐसे हैं इसमें हमें एक जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टाइम में हमें अटेम्प्ट करने से पहले वी शुड ट्राई एंड मेक अ स्ट्रक्चर, लाइक कि what all will be the important key points which we are going to frame and organize in the essay writing. So this is very important that we have a structure, and there is actually this draft prepared, and then only you have this starting then only you start attempting the question in your answer sheet. So essay के लिए you should always practice. So friends, in any case, for your mains, answer writing and repeated revisions are very important. Without answer writing आप जितना भी पढ़ाई कर लीजिए, आप अपना अच्छे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, and if you are not able to represent yourself effectively, you won't be able to gain good marks. So अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आप पढ़ते जा रहे हो और आपने बहुत पढ़ लिया और आपने रिवाइज कर लिया और आपको लगता है कि आपके मन में याद है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू राइट इट प्रॉपरली, यू राइट इट इफेक्टिवली, जितना उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना वर्ड लिमिट है, तो आप अगर वो नहीं कर पाएंगे देन यू वोंट बी एबल टू गेन गुड मार्क्स, यू वोंट बी एबल टू फेच गुड मार्क्स. सो इसके लिए यू कैन एक्चुअली see some mock test papers, series भी आजकल हैं. तो I am not saying कि coaching institute join करना है, they are available online also. There are shops also, book shops, study material मिलता है तो वहाँ कर सकते हैं. And try and see previous 2 से 3 साल के question paper. पिछले 2 से 3 साल के question paper को जरूर देखिए. You will get an idea of how they are asking. और हर बार हम ये हमेशा सुनते हैं कि हर बार यूपीएससी पैटर्न चेंज करता है, यूपीएससी नेवर रिपीट्स. दिस इज व्हाट वी कीप ऑन लिसनिंग, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट you can never predict what they are going to ask. So but that does not mean कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख के कोई फायदा नहीं होगा. You will definitely get an idea of how and what kind of questions they are trying to ask. So उसके लिए मैं कोई टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसा मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती, बट ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि इफ यू आर मे बी रीडिंग इन अ ग्रुप तो आपके फ्रेंड्स कलीग्स भी आपको you all can have a collective discussion. इवन मैं अपनी तैयारी के टाइम में भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, तो इवन दो मैंने बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं ली, बट आंसर राइटिंग के लिए लाइक वी यूज्ड टू राइट एंड देन गेट इट चेक आपस में भी. तो उससे क्या है कि
आपको ये यू विल डेफिनेटली सी दैट जो आपका पहली बार में उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन लिखा आपने, और उसको अगर आप तीसरी बार लिख रहे हो तो जो तीसरी बार लिखा होगा उसमें क्वालिटेटिव चेंज आपको दिखेगा. So there is no alternative to answer writing and repeated revisions as far as mains is concerned. If required, you make your own notes. अगर अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, जैसे मैं अलग से नहीं बनाती थी, मैं जो मेरा स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ती थी, चाहे वो कोई बुक हो चाहे कोई और मटेरियल हो, तो मैं उस पे ही आई यूज टू आइदर मार्क इन द पर्टिकुलर चैप्टर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या मैं उस चैप्टर के ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स बना के चिट्स बना के आई वॉज स्टेपलिंग देम, मैं उसको क्लब करती थी ताकि जब मैं बाद में जब मैं लेटर स्टेज में जब मैं रिवाइज करूंगी तो इट शुड नॉट कंज्यूम दैट मच ऑफ माय टाइम, राइट. तो ये आपकी हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अपनी होती है. यू आर ऑलरेडी सो क्वालिफाइड, हैविंग सो मच ऑफ एक्सपोजर. आज तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत चीजें आसान भी कर दी हैं. तो what is your way of studying that you can definitely decide, and important सिर्फ यही है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको इफेक्टिवली पेपर में लिखना है, राइट. सो नाउ आई मूव ऑन टू द इंटरव्यू पार्ट. इंटरव्यू इज द पर्सनालिटी टेस्ट. इंटरव्यू क्या है कि ओवरऑल आपका एक माइंडसेट क्या है, व्हाट इज योर ओरिएंटेशन of coming into civil services, what is your motive of coming into civil services, ये जानना चाहता है इंटरव्यू. सो इंटरव्यू इज द पर्सनालिटी टेस्ट एंड दे विल आस्क बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर बैकग्राउंड. सो आपने जो सीवी जब हम फॉर्म भरते हैं दे टेक सम डिटेल्स, सो दैट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपने अपना होम स्टेट क्या लिखा है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, which all places you have studied, and then if you are working then details about that. So it is very important that you work on your CV well, your background, your institutions where you have studied, if you are working, then जो आपने कोर्स किया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहा, प्लेस ऑफ वर्क क्या रहा, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, you know. So these are the questions which they ask, and then of course some questions on the what should I say, on your general knowledge, मतलब कुछ current affairs related issues concerning nation, issues concerning the society, national international current affairs भी पूछते हैं. What is your viewpoint on that? And the overall idea of interview and the personality test is to get the orientation from you कि आप civil services में क्यों जाना चाहते हैं, why is it that you want to join civil services, or what kind of things you want to change, what is it that you want to do when you are coming into civil services. तो ये सब चीजें होंगी, and then there may be some occasions wherein there is a debate or a healthy discussion. So my suggestion here is कि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको उस इशू पे उतना नॉलेज ना हो, और दे ऑल्सो ट्राई टू कंफ्यूज यू समटाइम्स, and then you unnecessarily enter into an argument. So my request to all of you is that do not enter into any argument with the interview board. The board members, the chairman and the board members, they are very experienced people from different parts of life. So if you are not confident about any answer, then politely admit that, sir and madam, I am not aware of this, but I will definitely update myself when I move out of the interview room. तो आपको अपना एक पोलाइटली, हम्बली बट फर्मली आपको जवाब देना है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कम टू देयर प्रेशर टैक्टिक्स रहते हैं कई बार इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, बट इट शुड बी अ वेल रीजन्ड. अगर आप आर्ग्यूमेंट कुछ कर भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट वैलिड है, तो उसको आप एक वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट की तरह रखो. इट शुड बी अ बैलेंस स्टेटमेंट विद द रीजनिंग कि व्हाई इज इट दैट यू फील कि दिस इज सो, है ना. और उसके साथ में कोई फैक्ट्स, कोई रिपोर्ट आपने पढ़ी हो, कोई मीडिया में कुछ आपने आर्टिकल पढ़ा हो, तो उसको आपको वहां पे रिप्रोड्यूस करना है, राइट. एंड इंटरव्यू के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव 2-3 मॉक इंटरव्यूज. मतलब आपका जो फाइनल इंटरव्यू जब होगा उससे पहले 2-3 मॉक इंटरव्यूज आप जरूर दीजिए. और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके देने हैं. आप
ऑफ कोर्स वो भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू ग्रुप डिस्कशन विद इन योर ओन सेल्फ्स. मतलब आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उसमें भी आप लोग जैसे सीवी जो है तो सीवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसको देख के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस अमंग्स योर ओन सेल्फ. तो वो भी एक वे है. बट डेफिनेटली योर overall orientation, your overall personality is actually trying to be evaluated during the interview personality test, and the core remains that why is it that you want to join civil services, and more so क्योंकि हम सब प्रोफेशनल कोर्स से शिफ्ट अगर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा पर्टिनेंटली पूछते हैं. अगर कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट है और वो सिर्फ उसी की ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है तो उससे उतना उस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है. बट अगर कोई प्रोफेशनल है, चाहे वो एक MBA प्रोफेशनल है या डॉक्टर है या चार्टेड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है, उनसे डेफिनेटली दे ट्राई टू आस्क दैट आप तो इतने क्वालिफाइड हो. एंड मेरे को उन्होंने इनफैक्ट ये बोला कि क्योंकि उस टाइम में मेरी जो है LLB भी कंप्लीट हो गई थी, उन्होंने बोला डोंट यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब. तो फिर आपको उसका क्या जवाब देना है. तो मैंने बोला कि सर आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं अपना एजुकेशन इस तरीके से कर पाई, बट आई थिंक मेरा जो ये प्रोफेशनल नॉलेज है ये नॉलेज मुझे आगे आके सिविल सर्विसेज में हेल्प ही करेगा. इट विल माई लीगल नॉलेज एज एन LLB ग्रेजुएट and as corporate professional, as company secretary, will definitely help me in discharging my responsibilities in a much effective way. तो ये मतलब ये आपका इंडिविजुअल क्या जवाब होगा वो आप डेफिनेटली आप अपना फ्रेम कीजिए. बट दिस क्वेश्चन जनरली दे विल ट्राई टू आस्क व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू स्टेज. तो दिस वाज फ्रेंड्स द थ्री स्टेज वाइज ब्रीफ डिस्कशन. नाउ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है अपने बात बोलने में, तो आई वुड just conclude in another 5 minutes by mentioning the overall some tips, and then if there are any questions from the students, so 2-3 questions I can also take if that facility is available. अगर students वहाँ से मेरे से सवाल पूछना चाहें, I would be very happy to answer the specific questions. So friends, overall civil services के लिए क्या important है? Overall important ये है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है. आपके माइंड में एक टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए कि आप आज तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, विच अटेम्प्ट यू आर विलिंग टू गिव एंड हाउ मेनी ईयर्स यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट. और जो मैंने प्लान बी की बात कही वो भी एक रियलिस्टिक स्टेप है जो हमें एज प्रोफेशनल डेफिनेटली होना चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. आपका सोशलाइजेशन कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट. हम जो एक क्वारंटीन वर्ड हम जो सुनते आए हैं कोविड-19 के टाइम पे हमने इतना वर्ड सुना, मुझे लगता है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो एक क्वारंटीन लाइफ ही जीता है जब तक वो तैयारी करके क्वालिफाई नहीं कर जाता है ना. सो दैट सेल्फ डिसिप्लिन, दैट सेल्फ मोटिवेशन, योर इनर ड्राइव, योर पॉजिटिव अप्रोच एंड ऑफ कोर्स योर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको दिन में कम से कम 14-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स, इससे कम में नहीं होता सिलेक्शन. अगर कोई ये बोल रहा है आपको कि 6-7 घंटे 1 साल पढ़ के हो जाएगा तो आई एम सॉरी, आई डू नॉट एग्री टू दैट. यू नीड टू डिवोट टाइम. 10-12 घंटे से कम तो नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इतना है ना, सब्जेक्ट्स ही इतने सारे हैं और उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं, मैगजीन भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स अपडेट करने हैं, फिर प्रैक्टिस भी करना है, रिवाइज करना है. So you will not get time actually if you actually start studying. You will understand what I am trying to say. तो उतना टाइम आपको देने के लिए तैयार होना होगा. जितना आपके सोशल गैदरिंग्स हैं उसको बॉयकॉट अपने आप ही आपको करना होगा. एंड इट इज़ बेसिकली योर ओन मॉरल करेज टू टेक ऑल दीज डिसीजंस. एंड जो एक हम बात बोलते हैं ना, सेल्फिश, बी सेल्फिश इन योर टाइम. तो ये जो सेल्फिशनेस है ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी ही बात है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली यू विल भी फ्यूचर में, जैसे मुझे भी जब मैं तैयारी कर रही थी तो देवर सो मेनी रिलेटिव्स हु वर विजिटिंग एंड देन आई वाज डेफिनेटली नॉट मीटिंग, या मैं बस
मिलके नमस्ते करके मैं आ जाती थी। तो वो कई बार वो जो है ना वो टॉन्ट्स भी मिलते थे मेरे को, मेरे पेरेंट्स को, बट इट इज एक्चुअली योर यू नो ओन कमिटमेंट कि आपके लिए उस टाइम में क्या इम्पोर्टेंट है और आप क्या करना आपके लिए क्या जरूरी है, वो अगर आपको क्लियर है तो आई थिंक उससे आपको you get your own clarity, right? So this is all very important, and of course stay calm, take adequate breaks in between. ऐसा भी नहीं है कि अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, ये नहीं है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू एनी मेंटर, एनी सीनियर, और कोई भी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये एग्जाम का प्रोसेस ही ऐसा है दैट एवरीबडी टेंड्स टू गेट डिमोटिवेटेड, एवरीबडी, सबके ही लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन आते हैं, ये सबके साथ ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो अपना जो इनर जो स्ट्रेंथ है वो पता होना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप उससे उबर पाओ। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस, एंड यस, जो मेरे से फ्रेंड्स पूछते भी हैं कि मैम आपका प्लान भी क्या था। मेरा प्लान भी ये था कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो मैं, जैसे क्योंकि मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन मेरा हो गया था और मैं CSLLB भी हो गई थी, तो आई वुड हैव डेफिनेटली जॉइंट कॉर्पोरेट सेक्टर। और जो मेरा एक इनर ड्राइव था कि मुझे समाज के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ करना है, उसके लिए मे बी आई वुड हैव एस्टैब्लिश्ड माय ओन NGO और अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फिर मैं ये जो मेरा मोटिव है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं, उसको मैं अचीव करती। तो दैट वाज माय प्लान बी इन लाइफ। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू the ICAI NIRC for inviting me. Now if any questions are there, I would be very happy to answer. Thank you very much, Sonal ma'am. It was a great inspirational journey, and आपने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जैसे कि वाई वी आर चूजिंग सिविल सर्विसेज एंड सेकेंडली प्लान बी। ये दोनों ही चीज़ें आई थिंक सो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक थिंकिंग प्रोसेस को अराइज करेंगी कि हम क्यों आ रहे हैं और अगर नहीं आते तो हमें क्या करना है। Yes. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स, तो अभी अगर उनको करियर में शिफ्ट करना है तो ये बहुत ही एक वेल थॉट ऑफ एंड एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। दे शुड टेक इट आफ्टर डिस्कशन विद देयर पेरेंट्स, फैमिली, और अपने सीनियर से अच्छे से गाइडेंस लेके ही इस डिसीजन को ऑप्ट करें। बिल्कुल मैम, नहीं तो हम सोचते हैं ना कि बस हम करना चाहते हैं इसलिए करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत क्लियर नहीं होते हम क्यों कर रहे हैं। बट ये आपकी बात से मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं एटलीस्ट वो एक पॉन्डर करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं और हम इतनी विगरस और इतनी उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको सोनल मैम का कोई भी बेनिफिट लेना है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो शी इज देयर विद अस, तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज। Vikas, in case if any participant has any query, If you have any query, you can please come here and ask any query from ma'am. Anybody interested? we are very Yes. fortunate to have Okay, Sonal okay. ma'am. So you please take a benefit of her presence. Please. इधर आ जाओ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Hanji. Ma'am, actually, I would like to ask questions about my. Your name and आप My अभी name is Jyoti Sharma. क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं CA और MBA दोनों कर रही हूँ. ओके, नाइस। हाँ जी. और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी का एक पर्टिकुलर कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट वो हैवी लगता है किसी को. जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है, जैसे मुझे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पढ़ने में मुझे थोड़ा इजी नहीं होता है. लगता है कि ये पढ़ूंगी कैसे पढ़ पाऊंगी, मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती है इसको पढ़ने के लिए. तो मैं पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, जैसे कि किसी का भी कोई भी हो, एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि किसी का पॉलिटी हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, जिसको वो हैवी लगता है पढ़ने के लिए. तो जैसे मेरा हिस्ट्री है तो मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाऊँ उसको ईजी वे में पढ़ पाऊँ, उसको क्लियर कर पाऊँ. तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मैम? Jyoti, subject specific strategy तो I can't tell, but yes, generally I can say कि yes, everybody has
मतलब किसी का कोई टॉपिक पे पकड़ अच्छी होती है, किसी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है और किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता है, इसलिए वो याद भी नहीं होती चीजें। जैसे मेरा भी हिस्ट्री वीक था, आपने बोला तो मुझे मेरा भी हिस्ट्री वीक रहा है। तो उसमें क्या है ना कि हम एक बात तो माइंड में ये रखें कि ये एग्जाम में हमें किसी भी सब्जेक्ट पे हमें पीएचडी नहीं करनी है। वी डू नॉट नीड टू बिकम अ रिसर्च स्कॉलर ऑन एनी सब्जेक्ट, है ना। इसका हमारा एम क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको उसमें रिसर्च स्कॉलर बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और उसके लिए आपको कितना तैयारी करना है ना। तो what are the basic minimum things which are required to do in that subject, that should you be able to clearly understand। उसका आपको आइडिया एक लगना चाहिए और उसके हिसाब से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो अवॉइड तो देखो, अगर आपको कोई सब्जेक्ट अगर नहीं भी अच्छा लगता पढ़ने में, तो इट इज नॉट कि वी कैन अवॉइड हम एंटायरली नहीं कर सकते, बट हाँ उसमें हमारा मिनिमम एफर्ट क्या होना चाहिए उस पे हम ऑप्टिमाइज करें। मतलब उसको बहुत ज्यादा माइंड पे अगर हम बोझ लेके करेंगे तो वो भी नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें उसको थोड़ा सा अपने आपको उसमें कि हमें दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन, और उसको ही तैयारी करें। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि रिपीटेड रिवीजन, मतलब चाहे वो टॉपिक आपको मुश्किल लगता हो या आसान लगता हो, रिपीटेड रिवीजन का कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं होता, वो करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक दैट इज द थिंग विच मतलब आप हम सबको फॉलो करनी ही पड़ती है। तो उसके हिस्ट्री के लिए भी आप मतलब जो बुक्स हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आई थिंक स्पेक्ट्रम की एक बुक होती थी, और I can't recall the books which I studied. Of course, अब तो पैटर्न भी काफी चेंज हो गया, अब तो more than 15-16 years हो गए हैं। तो उसमें यही है कि बहुत ज्यादा टॉपिक में रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन हाँ बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका मेरे को जवाब देना है, अनअटेम्प्टेड ना रहे। एक फ्रेंड्स बात एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, मेंस में एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हमारे क्वेश्चंस ना अनअटेम्प्टेड ना रहे। हम कोशिश करें, क्योंकि इवन 1 मार्क इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। आप इस बात को समझना। जैसे आप ज्योति एमबीए भी कर रही हो, तो एमबीए में भी कट ऑफ है, सीए में भी कट ऑफ रहता है ना, ऐसे सिविल सर्विस में भी कट ऑफ है, परसेंटाइल होता है आप लोगों के इसमें एमबीए में। तो ये जो एक नंबर है ना, ये एक नंबर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और एक नंबर से सिलेक्शन, रैंक, कार्डर ये डिसाइड होता है आगे जाके, है ना। तो इसीलिए हम कोई क्वेश्चन ना छूटे, हम अटेम्प्ट पूरा करें, क्योंकि मेंस में तो क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अगर आपको सपोज थोड़ा भी आइडिया आता है और आप उसमें कुछ लिख आते हो, तो हो सकता है कुछ मिल जाए, नंबर मिल जाए। तो इसीलिए वो जो 3 घंटे मिलते हैं हमें पेपर लिखने के, उसमें हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है मेंस का, और मेंस के ही मार्क्स हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस के ही मार्क्स आपके आगे टोटल में ऐड होंगे, राइट। मैम एक चीज़ और थी कि जैसे अब हिस्ट्री है तो काफ़ी वास्ट है, तो इसका मिडल एज भी पढ़ना पड़ता है, एंशियंट एज भी पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न भी पढ़ना होता है। तो मैं मतलब मेन फोकस कौन सा है, मॉडर्न पे है, मिडल पे या एंशियंट पे रहता है हमारा? अब देखो, मेरे को इतना तो मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगी, बट जस्ट in fact our other faculties will also apprise you in case अगर आपको ये चीजें पर्टिकुलर, क्योंकि मैम को भी करे हुए काफी साल हो गए, तो और हर साल वही हर पैटर्न चेंज होता रहता है मैम, और चेंज होता है। तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो मैं डिटेलिंग नहीं डेफिनेटली मैम। इनफैक्ट हमारी अदर फैकल्टीज भी आएंगी जो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी में भी फोकस करेंगी, तो आई थिंक सो शी कैन रेज दिस क्वेरी विद हर। बट सोनल से पूछिए तो आई थिंक दैट वुड, मतलब वो एक अच्छा उनकी तरफ से क्रेडिट डेफिनेटली। बट सोनल मैम ने जो ये बात बताई कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, अच्छा लगे ना लगे पढ़ना पड़ता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसको शायद ज्यादा रिवाइज करना चाहिए ताकि वो अच्छा लगने लगे। ओके मैम, ओके, नो थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? बेस्ट विशेस। आई थिंक सम अदर स्टूडेंट
Good afternoon, ma'am. एंड वो एक्चुअली अनीता जी मेरा ना एक्चुअली एक वो मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो बस मैं आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाँ, we will have the last question. एक क्वेश्चन लेते हैं. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स. Not an issue, ma'am. We will raise the questions to you. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी for a benefit. फिर मैं एक आध दिन में ना आपको ऐसे अदरवाइज रिप्लाई कर दूंगी. Absolutely, ma'am. The last question we can take. जी 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 जी. Ma'am, actually you said that we should give 4 to 5 months for our foundation, like reading, once reading, and then you said that we have to give 4 to 5 months for mains. So I was asking for mains, there are two, like GS and optional. So first we should focus on what, like GS preparation or optional preparation? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअली स्टूडेंट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं. एंड जीएस क्या है कि जीएस का एक प्लस पॉइंट ये है कि जीएस इज आल्सो रिलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ऑप्शनल आपका सिर्फ मेंस में ही आएगा, है ना. तो आप जीएस को पहले पढ़ रहे हैं या आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पहले पढ़ रहे हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू. इवन यू कैन क्लब, क्योंकि क्या है कि कुछ टॉपिक्स जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, तो जो भी आपका ऑप्शनल होगा, ऐसा भी होगा ज़रूर कि आपका जीएस के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो उसमें भी मदद कर रहे हैं, आपकी ऑप्शनल में भी मदद कर रहे हैं, है ना. तो इट कैन बी बोथ ऑल्सो. और मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप दोनों ही साथ में करो. मतलब उसमें क्या है कि दिन के जितने घंटे आपको पढ़ाई कर रहे हो आप उसमें डिवोट कर दो, चाहे ऑप्शनल के कम रख के जीएस के ज़्यादा कर दो. बट किसी भी को प्योरली पूरा, क्योंकि क्या है ना कि फिर आप ना भूल जाओगे. एक ये भी प्रॉब्लम है ना इस एग्जाम की, क्योंकि इतना सारा कुछ है ना. इफ यू डोंट कीप टच यू विल कीप फॉरगेटिंग, मतलब आप भूलते चले जाओगे, है ना. तो इसलिए बेटर ये है कि आप साइमल्टेनियसली ही करो. मैंने भी साइमल्टेनियसली ही करा था. मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी एक्चुअली बताई है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद यही फॉलो की है. मैं मतलब कोई बुकिश बात कभी नहीं शेयर करती हूँ कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए. जो प्रैक्टिकली मैंने जो फॉलो किया उसी को मैं उसी को शेयर करती हूँ. तो मैंने फ्रेंड्स मैंने साथ साथ ही किया. मतलब ये ज़रूर था कि जैसे इनिशियल टाइम में, क्योंकि मुझे जीएस को समझने में टाइम लगा, क्योंकि जैसे आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो हम लोग क्या है कि 10th के बाद पढ़ते ही नहीं है ना, तो वी लूज टच. तो हमें जीएस पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है. और हमारे टाइम में क्या था कि पैटर्न भी अलग था और ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट थे. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मेरे को पहले जीएस पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ा एंड देन आई स्टार्टेड माय ऑप्शनल्स. बट लेकिन फिर एट अ लेटर स्टेज जो है ये चीज़ें एक साथ ही करनी पड़ती हैं आप. क्योंकि अगर छोड़ दोगे ना, बहुत ज़्यादा गैप दे दोगे, अगर 15 दिन का 1 महीने का गैप दोगे, तो उसके बाद में फिर आपको ना रिवाइज, मतलब आपको रिकलेक्ट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. Yes. तो आई थिंक ये थोड़ा सा, मतलब आप जब एक बार पढ़ाई जब करना शुरू करोगे ना, यू विल बी योर बेस्ट जज. आपको ही खुद समझ में आएगा कि मेरे को कैसे पढ़ना है. राइट. Thank you very much, Sonal ma'am. हाँ. Thank you so In fact, on behalf of all the participants and on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India also, I thank you that despite of your hectic schedule, you still managed to come and take this online session, which was very motivational and inspirational for all of us. And definitely we will come back to you in case or in future endeavors of ICA also. Thank you very much, Sonal ma'am. Thank you so much, all dear students, and my best wishes to all of you. Just last few words from my side. कि whatever career profession you finally choose या जिसमें भी आप जाते हो, we all should be proud that we are Indians. और बहुत हमारे देश ने आज पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत सारे लैंडमार्क्स क्रिएट किए हैं. एंड यू आर दी पावर हाउस, यूथ इज द पावर हाउस, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, है ना. तो whatever career profession you choose, we should all try to contribute towards society and nation building. आज डॉक्टर APJ कलाम सर की भी एनिवर्सरी है, तो उनको भी ट्रिब्यूट सब दे रहे हैं. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द यूथ, एंड ही ऑलवेज एनकरेज यूथ टू इनोवेट, टू हैव दैट करेज टू डिलीवर डिफरेंटली, है ना. तो ये सब पोटेंशियल आपके अंदर है. तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है. हैव दैट सेल्फ बिलीफ, हैव दैट करेज,
एंड इवन जो हम इतने सुनते हैं मुहावरे जो सुनते हैं, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट and you can achieve everything in your life, stay positive. So these are very important, and the most important thing is stay happy. आपको खुश रहना है. आप कुछ भी काम करो, अगर उसमें आप खुश नहीं हो तो आप you will not be able to sustain. So एक जो contentment है, चाहे आप CA प्रोफेशन में जाइए, चाहे आप MBA प्रोफेशन में जाइए, चाहे आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनिए या सिविल सर्विसेज में जाइए, तो you should feel happy, you should feel energetic, and that enthusiasm will keep on driving you, है ना. So these are the words from my side. and एक लास्ट में एक पंक्ति मैं कोट कर रही हूँ, मेरी नहीं है, वो शायद आप सबने सुनी भी होगी, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वी हैव टू फेस इट. And once we start moving in our journey of life, ये challenges आते रहेंगे, लेकिन हम उनको face करते करते आगे बढ़ते रहेंगे, right? So thank you so much, the ICAI, and thank you team for inviting me, and my best wishes to all the students. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Jai Hind, ma'am. Thank you so much, ma'am.